Hello everyone, welcome to Lukman IAS. Today we are going to have the Hindu analysis of 17th August 2020. So let us see which are the important articles in today's The Hindu newspaper and take input for our examination one by one. So first article on page number 6, lapsing into contempt. So the article again having context of conviction of advocate Prashant Bhushan under contempt law by Supreme Court in last week. So yesterday also we discussed that there will be some analysis regarding this issue or the verdict in this week. तो अभी बहुत सारे article आएंगे. We will try to have some analysis and take input regarding this verdict. So what the article or the editorial is talking about is that the Supreme Court order finding the advocate guilty of contempt of court reflects poorly on institutions' tolerance of criticism. सो ट्राई टू यूज़ सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट. आप जब भी कोई भी आंसर में जब आप लिखते हो कोई स्टेटमेंट तो वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होना चाहिए, स्पेशली एथिक्स और पॉलिटी में. ठीक है, जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट 2 ट्वीट्स एंड नॉट एनी सेट ऑफ स्कैंडलस और scurrilous allegations have occasioned this heavy-handed treatment. Okay, so first tweet in which the image of Chief Justice of India S.A. Bobde इन इनफॉर्मल सेटिंग, तो हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. 2 ट्वीट कौन से थे? सो फर्स्ट ट्वीट वाज रिलेटेड टू द हार्ले डेविडसन फोटो ऑफ आवर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन द बाइक. तो वो विदाउट मास्क, तो वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने एक कमेंट किया था प्रशांत भूषण ने दैट ऑन वन हैंड CJI इज़ टेकिंग सच फोटोज़ एंड ऑन अदर हैंड ही इज़ कीपिंग द Supreme Court shut down during this we can say unprecedented times. तो वो एक कहीं ना कहीं एक क्रिटिसिज्म माना गया था और उसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, उस क्रिटिसिज्म को कंटेम्प्ट कंसिडर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एंड ही इज़ कन्विक्टेड. At the same time, if we analyze this, it is quite a stretch to say that it undermines court's dignity and lowers its authority or interferes with administration of justice. Actually, these are the we can say that reasons for which there can be a, let's say, contempt law invoked by Supreme Court, or the, let's say, grounds on which the contempt law can be invoked. तो देखा जाए तो वो इतना मतलब ये सारे ग्राउंड्स को इन्वोक नहीं करता है जो ट्वीट है. At best, it touches partially on CJI's personal conduct and partially on his administrative decision making. ठीक है, so neither part brings with it an exceptional malice. ठीक है, तो warranting any action or criminal contempt. It is precisely this sort of criticism that the judiciary ought to able to shrug off. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि ये जुडिशरी ने जो है ऐसे छोटे छोटे क्रिटिसिज्म जो होते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को वो एक्चुअली छोड़ देना चाहिए. द सेकंड ट्वीट इट इज़ टॉकिंग अबाउट इज मिस्टर भूषण हैज़ ब्लेम्ड द कोर्ट more particularly last 4 CJI for the destruction of democracy in last 6 years, even without a formal emergency. This requires actually no defense because this is actually even let's say criticized on the same manner by the former judges also. ठीक है, it is difficult to agree the mere voicing of an opinion that successive CJIs have destroyed democracy would undermine the public trust in judiciary, especially in the background of some former judges too holding the sharp critical opinion of conduct of some of them. तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि जो खुद जजेस ही फॉर्मर जजेस ही सेम टाइप का जब क्रिटिसिज्म करते हैं, then it is let's say not, we can say that contempt ground to let's say invoke the contempt law. Fine. So the highest court built its stalwart fame on the stellar judgment and record of fearless independence. If it all falls in the estimation of world now, it may be because of growing perception of judicial evasion, or we can say that in the face of quiet acquiescence in the face of executive power. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, द जुडिशरी इज समहाउ फेलिंग टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल
वी नो दैट ऑलरेडी द लेजिस्लेचर इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, अभी सेशन होने वाला है, उसके लिए काम चल रहा है, बट अप टिल नाउ सिंस मार्च जब बजट सेशन जो है वो ख़त्म हुआ था, तब से अभी तक जो है पार्लियामेंट जो है सेशन में नहीं आया था, ठीक है. सो दिस सजेस्ट दैट जुडिशरी इज़ नॉट एक्टिंग एज लेट्स से mechanism to hold executive accountable. एट द सेम टाइम ये एक पेटी इशू माना जा रहा है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इतना अर्जेंटली क्यों वर्क किया. कल ही हमने देखा था कि जस्टिस लोढ़ा जो थे फॉर्मर सीजेआई, उन्होंने भी बोला कि व्हाई दिस केस वाज टेकन विथ सो मच अर्जेंसी, ठीक है, इतना अर्जेंटली नहीं लेना चाहिए था. प्रोसीजरल जस्टिस शुड हैव बीन देयर, ठीक है. तो प्रोसीजरल जस्टिस मतलब क्या होता है कि एक्चुअली फिजिकल हियरिंग होने तक रुकना चाहिए था, वर्चुअल हियरिंग में ही कन्विक्ट नहीं करना चाहिए था, या फिर वो हियरिंग नहीं होना चाहिए था. तो वो कहीं ना कहीं एक हर्डल हो जाता है जस्टिस डिलीवरी में. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट ऐसे एक्सपर्ट ओपिनियन आपको पता होने चाहिए. अगेन वन मोर आर्टिकल विल सी टुडे, इट इज़ रिगार्डिंग लेट्स से क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी बाय द फॉर्मर जज. बट इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है आप देखिए. Voice has the potential to strengthen the institutions and help them adapt to the changing environment. Comment in the light of use of contempt provisions by the judiciary. So basically here we have to understand that the voice or the criticism strengthens institutions rather than weaken it. जैसे जहाँ पे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म किया जाता है बाय सिविल सोसाइटी और लेट्स से अपोजिशन, या लेजिस्लेचर का जहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओज होते हैं, दे टेंड टू लेट्स से इवैल्यूएट द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेचर एंड देन क्रिटिसाइज इफ इट इज़ हैविंग लेस प्रोडक्टिविटी और सम अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स, ठीक है. तो अगला आर्टिकल जो है सेम, इट इज़ हैविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ contempt law, but it has very good statements regarding this. Actually the writer is very much familiar with the advocate Prashant Bhushan and his family. So she is of let's say what you can say awe feeling, or we can say that she is surprised because of such conviction by the judiciary, as all let's say family members including Prashant Bhushan has always worked to let's say strengthen the rule of law, or we can say इमेज ऑफ जुडिशरी, ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है अभी. फाइन. सो जुडिशियल इनिशिएटिव ऑफन इन रिस्पॉन्स टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ लेड मेनी प्रोग्रेसिव डिसीजंस ओवर द 2 decades. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्री मील्स वाला जो ऑर्डर किया था स्कूल चिल्ड्रन इन पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स, सो दैट लेड टू वी नो दैट द मिड डे मील स्कीम एंड ऑल. Scrutinizing the behavior of legislative and executive arms of the government did not let's say lower the dignity associated with this office or undermine democracy. So on contrary it improved their functioning, right. तो ये एक आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इंस्टीट्यूशन का जब क्रिटिसिज्म होता है तो रादर वी कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव वे टू इम्प्रूव अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, प्रोसेसेस एंड वर्किंग. So court exists to promote justice by adjudicating on disagreements. तो disagreements या फिर हम जब criticize किया जाता है तो basically this is a disagreement, right? या फिर बोला जाता है कि जो opposite view है, other view जिसको बोला जाता है. So judiciary relies listening on testimonies and deciphering them to extract the evidence. So good jurisprudence जिसको बोला जाता है, it relies on listening to all these and separating the wheat from chaff, ठीक है. तो इन कंक्लूजन यू कैन यूज दिस वेरी गुड स्टेटमेंट, वॉइस हैज़ द पोटेंशियल टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन एंड हेल्प देम अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है. तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो परमानेंट नहीं हो सकता, ठीक है. सो विथ टाइम सम ऑफ इट्स प्रोसेसेस, सम ऑफ इट्स फंक्शंस गेट आउटडेटेड एंड दैट हैज़ टू चेंज, ठीक है. और वो चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है. वो जो है वो सिविल सोसाइटी है, लोगों की तरफ से जो वॉइस आता है वो सुनना चाहिए जब भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की बात होती है. तो फाइन. सो इन स्टिफलिंग वॉइस वी रिस्क द डिसएंगेजमेंट ऑफ दोज हु आर मोस्ट इन्वेस्टेड इन लेट्स से प्रिजर्विंग आवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है. जो मतलब एक पॉजिटिव इंटेंशन से काम कर रहे हैं
डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर प्रमोट करने के लिए. सो वी आर बेसिकली डिसएंगेजिंग देम फ्रॉम दिस प्रोसेस व्हेन वी स्टिफल देयर वॉइस. फाइन. तो ट्राई टू यूटिलाइज दिस स्टेटमेंट्स, कैप्शंस एंड कोटेशंस. हम एंड में देखेंगे इनको. फाइन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, फ्रीडम एंड आइडेंटिटी, द राइट टू बी. Okay, so what the article is saying here, some ethical perspective is there, philosophical perspective is there, and we can say that essay में भी आपको useful हो सकता है. So I will briefly give you idea regarding this article, what it is saying again. So अब तक हमने जो देखा था वो लॉ और रूल्स और लीगल प्रोसीजर से देखा था कि फ्रीडम का मतलब क्या है. ठीक है, फ्रीडम या वॉइस का मतलब क्या होता है, या फिर बेसिकली लिबर्टी का मतलब क्या है. फाइन. सो हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट फ्रॉम फिलोसॉफिकल और एथिकल पर्सपेक्टिव दैट द फ्रीडम इज नोइंग, फ्रीडम इज नॉट अबाउट द चॉइसेस बट नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ वन सेल्फ. ओके, सो इट इज लेट्स से टॉकिंग अबाउट द स्वराज्य. ठीक है, तो स्वराज्य का मतलब इन्होंने बोला है कि नोइंग सेल्फ. ठीक है, तो जब हमको खुद को जानते हैं, ठीक है, तब सेल्फ का मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली सोल भी बोला गया है अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी एंड माइंड, वी कैन से दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस दैट वी नो. हाउएवर देयर इज मोर टू दैट, एंड दैट इज सोल और सेल्फ. व्हेन द ह्यूमन बीइंग स्टार्ट टू लेट्स से नो अबाउट द सेल्फ, देन ही इज ट्रूली फ्री. ही कैन एंजॉय द ट्रू फ्रीडम आफ्टर दैट. ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, जो राइट्स दिए गए हैं या वो प्रिंसिपल्स की जो बात की है, सो द इंडिविजुअल्स और द सिटीजन्स विल बी एबल टू ट्रूली रियलाइज दीज लेट्स से राइट्स और प्रिंसिपल्स ओनली व्हेन दे आर एबल टू नो देमसेल्फ, या फिर उनका जो सेल्फ है उनको अच्छी तरीके से जानना, रादर दैन लेट्स से ऑप्टिंग or co-opting their self with other procedures. For example, they are say here it is saying that co-opting with other political processes, co-opting with others views, जिसको बोला गया है. ठीक है, तो ये एक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. और यहाँ पे राम राज्य और स्वराज्य, इन दोनों को उन्होंने कनेक्ट किया है. ठीक है, तो राम राज्य या स्वराज्य का मतलब क्या है. यहाँ पे राम राज्य का मतलब उन्होंने बोला है, तुलसीदास ने रामायण में जो डिस्क्राइब किया था राम राज्य, एज अ प्लेस वेयर एवरीवन फेल्ट फ्री टू डू व्हाट दे वेर सपोज टू डू एंड वेयर दे वेर सपोज टू, देयर वाज नो फियर, सॉरो और डिसीज. ठीक है, तो महात्मा गांधी ने भी बोला था वैल्यूज ऑफ राम राज्य एज द शेयर्ड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. So try to utilize this philosophical aspect in your essay or ethics paper, जिसको राम राज्य को क्या बोला गया है. Rather it is let's say everyone felt free what they were supposed to do and where there was no fear, sorrow and disease. ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है फ्रीडम का मतलब. और फिर उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन में बताया कि from Ram Rajya to Swarajya is the continuum, the journey from the temporal to the transcendental, from the civic to sacred. तो यहाँ पे उन्होंने राम राज्य को सिविक सेंस में लिया हुआ है, मतलब जो सिविक राइट होता है ना, फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम जिसको बोला गया, उसको सिविक सेंस में लिया गया है. ठीक है, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से व्हेन वी हैव इंटरेक्शन विथ अदर्स, ठीक है, वन हैज़ इंटरेक्शन विथ अदर्स, तो उसको हम बोलते हैं कि एक राम राज्य वाला कंसेप्ट उन्होंने यूज़ किया है. बट जो स्वराज्य की बात की गई है, तो स्वराज्य में उन्होंने जो है तो खुद के अंदर जाके खुद के सेल्फ को जानना, नोइंग द सेल्फ, इट्स ट्रू काइंड ऑफ फ्रीडम इट इज़ टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो जिसको सैक्रेड फ्रीडम बोला गया है. फाइन. सो द अवेयरनेस ऑफ आत्मा सेट्स अस फ्री फ्रॉम द illusion that we are nothing more than our bodies and our minds. ठीक है, तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए. एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है फ्रीडम का जहाँ पे हम बात करते हैं. सो दैट विच सेट्स अ ह्यूमन बीइंग फ्री इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ. ये स्टेटमेंट आप जहाँ पे फ्रीडम की बात करते हैं या फिलोसॉफिकल एंगल जहाँ लाना है फ्रीडम के रिगार्डिंग, लिबर्टी के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट काफ़ी यूजफुल हो सकता है. ओके, एट द सेम टाइम देयर कैन बी क्वेश्चन इन एथिक्स, evaluate the statement.
सो ये आपको अभी जो एनालिसिस किया हुआ है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इवैल्यूएशन में, बाय गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ राम राज्य एंड स्वराज्य. फाइन. Moving on to next article, India is moving towards a form of elected autocracy. तो अभी जो मैं बता रहा था कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट AP Shah is criticizing at the present situation, or we can say that the government institutions including judiciary also. ठीक है, तो क्या क्या क्रिटिसिज्म है यहाँ पे देखिए. जैसे कि पार्लियामेंट जो है वो काम नहीं कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ घोस्ट टाउन. एट द सेम टाइम यहाँ पे ये बताया गया है कि जुडिशरी हैविंग abdicated its role, accountability mechanisms have become diluted and the central executive has become all powerful and given free rein to do whatever it pleases. तो ये एक कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ गवर्नेंस, ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी. ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट उन्होंने बोला है. बट उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, लाइक इन पास्ट ऑल्सो पार्लियामेंट हैज़ वर्कड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस. फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट हैड प्रीवियसली वर्कड कंटिन्यूड टू फंक्शन थ्रू अदर टाइम्स ऑफ क्राइसिस इंक्लूडिंग वॉर्स 1962, 1971 and even met very next day of its own building faced terror attack in 2001. ठीक है, तो जो टेरर अटैक हुआ था 2001 में, तो उसके बाद दूसरे दिन ही वहाँ पे रिज्यूम किया गया था फंक्शन. Parliaments of other countries had continued to function during this COVID-19 time, but not of India. Today the judiciary appears to once again to be failing us. वहाँ पे judiciary का भी criticism किया गया है, drawing the parallels to emergency and accusing apex court of ignoring and delaying cases related to important issues such as Kashmir trifurcation, the Citizenship Amendment Act and electoral bonds. ये important issues जो है वो delay किए जा रहे हैं. For not functioning, we can say that. Social activist Aruna Roy also criticized the government for, let's say, putting the policy through undemocratic ways, जैसे कि dilution of labor laws है, waiving of environment protection, जो अभी draft environment protection laws जो आया है, वो भी कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि it is diluting the provisions. ठीक है, और अनडेमोक्रेटिक वे में ये सब किया जा रहा है. सो ये क्रिटिसिज्म, यानी कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म क्या है, ये व्यू आपको साइड पता होनी चाहिए जब आप आंसर में लिखते हो तो. फाइन. सो बट वी विल नॉट यूज दिस लैंग्वेज. ओके, सो रादर वी विल पुट इन द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वेन एवर वी राइट द आंसर्स. इवन इन एसे ऑल्सो ट्राई टू डू द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. यू कैन डायरेक्टली कोट और लेट्स से गिव रेफरेंस ऑफ दिस सोशल एक्टिविटीज़ एंड फॉर्मर जजेस ऑल्सो. ठीक है, तो वो एक हम बोल सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड रेफरेंस हो जाता है. हम खुद जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एक्चुअली उसका वेटेज जो है वो निगेटिव हो सकता है. रादर वी कैन कोट समवन. ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड हो जाता है. एंड वी नो दैट AP शाह इज़ नोटेड अ फॉर्मर जज. ठीक है, तो वो उनका व्यू जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं मैटर करता है. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पर्पस. US FDA फूड and Drug Administration has approved a new rapid and inexpensive saliva test called as Saliva Direct. तो ये नाम पता होना चाहिए टेस्ट का आपको. ठीक है, it is developed by a team from Yale School of Public Health along with, let's say, collaboration with National Basketball Association and National Basketball Players Association. ठीक है, तो उन्होंने ये किया है. इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है? It is लेट्स से वेरी अफोर्डेबल, इनएक्सपेंसिव. उसकी कॉस्ट जो है वो $10 और लेस होगी. या सेंसिटिविटी, वेरी हाई सेंसिटिविटी अप टू 93%. ठीक है, तो इसकी वजह से इसको बोला जा रहा है कि अभी इट विल ब्रिंग द रिवोल्यूशन इन, लेट्स से, रैपिडली डायग्नोजिंग COVID-19 डिसीज़. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है COVID-19 रिगार्डिंग. ओके, so Saliva Direct developed by Yale School of Public Health in collaboration with National Basketball Association. इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है. तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि Saliva Direct test developed in USA uses saliva and not nasopharyngeal swabs. ठीक है, जो नाक में से जो swabs लिया जाता है, that is again invasive, we can say that. And this is not used in this test. Rather, it is used saliva from the mouth is taken
for this test. So this is the wrong statement, rather second and third statement is correct, so therefore answer is B. Moving on to next let's say article, leaking bulk carrier ship in the Mauritius splits into two. तो ये जो हम बोल सकते हैं कि पिछले एक दो हफ्ते से डेवलपमेंट हो रहा है ऑन द कोस्ट ऑफ मॉरिशियस. वन जापानीज ऑयल टैंकर शिप, oil carrying ship was, let's say, broken at the coast, and therefore there is oil leakage into the coastal areas, and this has led to huge damage on environment, or we can say marine ecosystem, environment pollution, marine pollution. ये सब जब क्वेश्चन आएगा, you give this example, okay, case study और example of oil spill. तो एक्सपेक्टेड है इस बार क्वेश्चन आपको ऑयल स्पिल का क्वेश्चन प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो. जैसे रशिया में भी जो है वहाँ पे भी एक रिवर के यहाँ पे ऑयल स्पिल हुआ था, जहाँ से वो एक्सप्लोरेशन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है ऑयल का, वो वेल लीक होके वहाँ से वो रिवर में चला गया, एंड दैट रिवर फ्लोज इनटू द आर्कटिक ओशन. फाइन. तो वहाँ पे एनवायरनमेंट इमरजेंसी लगाई गई थी, यहाँ पे भी एनवायरनमेंट इमरजेंसी लगाई गई है. Now it is called as, let's say we can say that it is under control, as most of the oil from the ship, remaining oil, has been removed. Fine. So quotes and quotations, caps and captions, we can use very much important these quotations for, let's say, ethics paper or essay paper. ठीक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी फ्रीडम की बात हो रही है या फिर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बात हो रही है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो ये सारे स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज़ कर रही है. ठीक है. सो बी इट इन एसे पेपर, बी इट इन GS2 और बी इट इन GS4 ethics paper. Fine. So these were important articles from today's newspaper. For further information regarding editorial discussion classes, wherein in-depth analysis of all these articles is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.